Good morning to all. Good morning. Let us have a discussion on the background of the income tax law. From the next session, we will begin with the residential status. Today, we will not touch. Today, we will see the important concepts of the income tax law. जो income tax law में important terminology use होने वाली है, तो यहाँ से लेके लास्ट तक जब भी अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज हो, बाय मिस्टेक भी अगर मुझसे कोई जल्दी में अगर कोई टर्मिनोलॉजी यूज हो गई, तो आपको उसका मतलब पता है कि सर एग्जैक्टली क्या कन्वे करना चाहते हैं. या differentiate direct tax from the indirect taxes. What are the differences? How we can differentiate direct taxes from the indirect taxes? Just within 5 minutes. For each and every topic, I'll take just 5 minutes. Yes, and we'll go through. Direct tax includes income tax only. And in case of indirect taxes, today the major taxes are, it is GST and the customs duty. Two taxes are indirect in nature. Indirect means ultimately it goes to end consumer. And direct means the person who earn the income has to pay the tax. That is called direct tax. In indirect taxation, there are two parties. The person who bear the tax and person who pay the tax. Both are different. For example, I'm selling this pen. I'm a stationery shop. I'm selling this pen for ₹10. 1.8 is GST. 11.8 में मैंने sell किया. I'll collect from customer 11.8. 1.8 is GST. I'll collect from customer and will pay to the government. So payer is a different thing, different person, and the person who bear the tax is a different person. Both are different in indirect tax law. Yeah, and in income tax, both are the same. The person who earn the income has to pay the tax. Yes, both are the same. Yeah. अगर मैं direct taxation में बोलूं, in case of the direct tax, burden cannot be shifted. जो person income earn कर रहा है, उसको ही tax भरना है. Yeah, burden cannot be shifted to the next party. But in case of indirect taxation, burden is shifted. Burden can be shifted to the end consumer. If you are a businessman, you can shift to the end consumer. आपने purchase पे अगर tax पे किया, if you are also businessman, you are selling back to back, then you can shift the burden to the end consumer. आपको ये भली बात ही पता होना चाहिए. आज जो GST है, indirect taxes है, वो पूरा इंडिया में 140 करोड़ जनता पे कर रही है. Moment you consume the goods, you are consuming the taxes. Parallelly, आप पिज्जा खाने के लिए जाते हो, तो पिज्जा ही नहीं खाते हो, साथ में टैक्स भी खाते हो. पिज्जा के साथ टैक्स भी आ रहा है अंदर, इसलिए आप बड़े हो जाते हो. That is the reason. Yes. इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है. यानी कि इंडायरेक्ट टैक्स में अल्टीमेटली इट इज बोर्न बाय द एंड कंज्यूमर. इनकम टैक्स में जो पर्सन इनकम अर्न कर रहे हैं वो ही टैक्स भर रहे हैं. जिसकी इनकम में अगर एक लाइन में बोलूं ना, इंडिया में 5 लाख से ज्यादा है, पर अनम 5 लाख से ज्यादा है, वही लोग टैक्स पे कर रहे हैं. उससे कम इनकम वाले को आज इंडिया में इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो. या तो आज अप्रोक्सीमेट, यानी कि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं. 10 करोड़ ITR फाइल हो रहे हैं. 10 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि 8 to 10 करोड़ लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं. इट्स अ गुड थिंग. यानी कि मोर देन 5 करोड़ लोग आज जो टैक्स का पेमेंट भी कर रहे हैं, इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो गुड थिंग. इट इज अ वेलकम थिंग. यस. नाउ अगर मैं मेजर और डिफरेंस आपके सामने रखूं, तो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो साल में एक बार फाइल करना होता है. जीएसटी का रिटर्न है वो आपको मंथली या तो क्वार्टरली फाइल करना है, आपको हिसाब देना. इनकम टैक्स में it is a direct tax. It is directly levied on the income of the person की इनकम पे वो लेवी होता है डायरेक्टली. एंड प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं ना, तो इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम, इनडायरेक्ट टैक्सेस इज टैक्स ऑन एक्सपेंस. अगर आप एक्सपेंस करते हो तो ही आपको जीएसटी पे करना. आप कुछ डिमार्ट में खरीदी करने गए तो ही आप जीएसटी पे करके आते हो. आप आराम से बारिश में घर पे ही बैठे हो चाय पी के, तो आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना. मोमेंट यू ट्रैवल, आप पेंटालून में गए अंदर, बस अब आपको जीएसटी पे करना है. आप कुछ भी चीज को टच करते हो, कोई भी चीज को, तो आपको पैरेलली साथ में जीएसटी भी देना है. यस. सबसे मेजर डिफरेंस मैं बताऊं ना,
income tax affects the psychology of the taxpayer. Indirect tax, GST, doesn't affect the psychology of the taxpayer. Why? Indirect tax जब आप GST पे करते हो ना, समझ लो मोबाइल फोन परचेस करने गए, 50,000 का मोबाइल फोन है, 18% GST है, तो 9,000 GST, 59,000 इज अ प्राइस. आप खरीदते हो ना 59,000 में, तो भी आप खुश होके आप पे कर रहे हो टैक्स. आपको पता है आप कितने खुश होते हैं अंदर से, और आप टैक्स भर रहे हो. 59,000 दे रहे हो ना, इसमें 9,000 टैक्स दे रहे हो. क्यों? इन इनडायरेक्ट टैक्स इट डजंट अफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल. रीजन बीइंग you are getting something while you are paying taxes. जब आप टैक्स पे कर रहे हो ना, आप जब प्रोडक्ट खरीद रहे हो आपको प्रोडक्ट मिल रही है और तब आप टैक्स भर रहे हो. 59,000 के अंदर जा रहा है, आपने कभी प्राइस देखा ही नहीं. क्या प्राइस आपका कंफर्म हो गया, माइंड में फिट हो गया, मुझे खरीदना है, बस अब 59,000 पे करो, साथ में मोबाइल आ रहा, मोबाइल की खुशी ज्यादा है, जीएसटी पे करो उसकी दुखी है, उससे ज्यादा उसकी खुशी वहां सेट ऑफ हो जाती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपकी साइकोलॉजी को टच नहीं कर. आपने कभी ऐसे सोचा पिज्जा खाने गए, कितना जीएसटी कितना? नेवर नेवर. पिज्जा पे ही फोकस होता, फोकस कंप्लीट फोकस इज ऑन पिज्जा. यस, ये तो आने दे अभी. हाँ, तो दैट इज द रीजन. Indirect tax doesn't affect the psychology of the people, but direct tax affects the psychology of the people. Direct tax. आपको एक बार बोले नहीं, आपको बोले जाएगा यहाँ आप पूरे साल समझ लो सीएमए हो जाते हो पूरे साल, बाद में समझ लो आपका सैलरी इज फॉर एग्जांपल 15 लाख इज सैलरी एनुअली, 15 लाख सैलरी है आपकी, तो 15 लाख पे अप्रोक्सीमेट आपको 5 लाख टैक्स भरना पड़ेगा. 5 लाख अगर आप ये टैक्स भर रहे हो, 4-5 लाख टैक्स आएगा आपका. अगर आपको कोई पूरे साल में 15 लाख आपको इनकम मिल गया, बाद में आपको बोले कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर रिटर्न फाइल करना है, 4 लाख टैक्स भरना है. सर वापस बोलो, 4 लाख टैक्स भरना है. दैट विल हैपन. क्यों ये है, क्यों आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या इट अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी. एक बार पॉकेट में इनकम आ गई, बाद में टैक्स भरना इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. डिफिकल्ट टास्क हम तो किसी को भी नहीं देते पॉकेट में आने के बाद. यू टेल मी, ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया. कल अगर आप बड़ा बिजनेस करोगे, इसमें से बनेगा, कोई ना कोई आएगा एक दिन यहाँ BMW लेके नीचे पार्किंग करेगा. हाँ, ये कंफर्म है. यानी कि यहाँ समझ लो आपका पूरे साल का प्रॉफिट, योर प्रॉफिट इज 1 करोड़ रुपीस. आप बिजनेस कर रहे हो, 1 करोड़ रुपीस प्रॉफिट. एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बोला जाए 30 लाख टैक्स भरना है. अगर मैं उसका टैक्स कंसल्टेंट हूँ तो भी वो बोला इस तरह से देखेगा, आपको पता चलता है. और वो घर जाके सोचेगा, घर जाके वापस मुझे वो टाइम पे भी मुझे बताएगा, सर कुछ करो ना, आप तो यार कंसल्टेंट हो, इसके कैसे रिड्यूस करो, कुछ करो. नहीं ये एवरीथिंग इज प्लान, और बाद में ही 1 करोड़ आ रहा है. तो ठीक है सर, 1-2 दिन वेट करो, बाद में वो घर जाके, या तो मैं जब निकल जाऊँ, बाद में उसके फ्रेंड जो है ब्रिलियंट, उसको भी बोलते हैं इतना टैक्स आता है, कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं होता इसका. ये देखो, घर जाके नाइट में भी वो सोचेगा 11 बजे, वहां तारक मेहता चलता है और यहाँ ये सोच रहा बंदा क्या, वहां उल्टा चश्मा और यहाँ भी उल्टा करके बैठा है. यहाँ तो ये सोचेगा किस तरह से टैक्स चोरी की जाए. धीरे धीरे आइडिया था, बाजू वाला होता है ना, वो ऐसा है, मेरा केस में था, हमने ऐसा कर दिया था, 0 टैक्स हो गया. चल, तो देखो, ये देखो कहां से थॉट स्टार्ट हुआ. इट अफेक्ट्स द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल की साइकोलॉजी को हिट किया डायरेक्ट टैक्स ने. तो बाद में जब ह्यूमन बीइंग ऐसा प्राणी है कि एक बार उसकी साइकोलॉजी को हिट करे ना, तो वो सोचना स्टार्ट करता है. और एक बार सोचना स्टार्ट किया, बाद में वो कुछ भी करेगा. पता चलता है आपको? या तो टैक्स चोरी भी करेगा, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इक्वल पॉसिबिलिटी है. तो माय क्वेश्चन इज, डायरेक्ट टैक्स अफेक्ट्स द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल. तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी ज्यादा है. आज लोग काफी कैश में बिजनेस कर लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर लेते हैं, काफी कैश बहाते हैं, समंदर बहाते हैं. देख रहे हो ना, या काफी जगह पे न्यूज़पेपर में आता है 500 करोड़ નો દરોડો, ઇન્કમ ટેક્સ નો દરોડો પડ્યો, 500 કરોડ રૂપિયા પકડા. Yeah, so meaning that it affects the psychology of the people. High tax rate is that 30%. तो लोग टैक्स चोरी के लिए काफी अटेम्प्ट करते हैं इन केस ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस. इसलिए इनकम टैक्स की रेट ज्यादा बढ़ती है. इनकम टैक्स में भी गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स का पोर्टल भी अच्छा बनाया, काफी इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रही है गवर्नमेंट, आईटी सिस्टम यूज कर रही है. तो धीरे धीरे वहां भी टैक्स चोरी रिड्यूस होती जा रही है. तो भी इतना कलेक्शन आ रहा है. देखो 14 लाख करोड़ का टैक्स का कलेक्शन आ रहा है इनकम टैक्स में से,
अभी टैक्स चोरी बंद हो जाए तो ये कहाँ चला जाए, आपको पता चलता है? या but it affects the psychology of the people. This doesn't affect the psychology of the people. Yeah. So these are the major differences between direct taxation and indirect taxation. Here GST and custom duty, and here income tax. So direct tax में एक ही tax है, it is income tax. Clear? So these are the differences between direct tax and indirect tax. Come to the second part. I think this topic is discussed. मैंने second part already discuss किया बजट में क्या कि जो बजट का पार्टीशन है अप्रोक्सीमेट 28 लाख 30 लाख करोड़ के आसपास का बजट आया है इस बार। क्या इसमें अभी 14 लाख करोड़ के आसपास डायरेक्ट टैक्सेशन है, 14 लाख करोड़ के आसपास जीएसटी कस्टम ड्यूटी इंडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन होगा, एंड 2 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट की अदर रेवेन्यू आ रही है। काफी गवर्नमेंट की कॉर्पोरेट्स है, ओएनजीसी, जीएसएफसी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी गवर्नमेंट के पास है, उसमें से रेवेन्यू आ रही है। यस और नो? या तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोथ आर द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। या मैंने तो आपको वहां तक पढ़ाया है। क्या अगर मैं हेड वाइज बोलूं ना तो सैलरी हेड में से 2 लाख करोड़ की रेवेन्यू आ रही है गवर्नमेंट की। 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का धंधा है गवर्नमेंट का, सैलरी में से टैक्स है। और सैलरी में तो एकदम शांति, आपको पता, सैलरी में कोई एम्प्लॉय को टैक्स भरने के लिए जाने का नहीं हो कोई जगह पे, आपका वहां डिडक्ट होके आता है टीडीएस। आप जहां जॉब करोगे ना, कल अगर 50 लाख आपकी सैलरी होगी, आपका जितना भी टीडीएस होगा ना वहां ही काट लेंगे एम्प्लॉयर, कंपनी काट लेगी, कंपनी डिडक्ट करके भर देगी, डिपोजिट कर देगी, और आपको यहाँ ऑनलाइन दिखेगा। दैट इज कॉल्ड टीडीएस। क्या बोलते हैं? समझ लो पूरे साल का आपका टैक्स आ रहा है 10 लाख 12 लाख रुपीस, 50 लाख पे 12 लाख रुपीस टैक्स आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो 12 लाख रुपीस कंपनी किस तरह से वर्कआउट करती है, स्टार्टिंग में टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर लेगी आप 1 अप्रैल पे, 12 लाख टैक्स आ रहा है पूरे साल का। हर महीने कितना टीडीएस काटना चाहिए आपका? 1 लाख। तो हर महीने आपकी सैलरी में से 1 लाख डिडक्ट हो जाएगा। कंपनी विल डिडक्ट, विल डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट, विल फाइल द टीडीएस रिटर्न, और आपको ऑनलाइन शो होगा। आप आपका लॉगिन करोगे ना इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो आपको वो 1 लाख दिखेगा। इट इज योर एडवांस टैक्स, इट इज योर टीडीएस। आप जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे, आपका, यू आर माई एम्प्लॉय, जब आप रिटर्न फाइल करोगे 50 लाख सैलरी, उस पर टैक्स वर्कआउट करोगे 12 लाख, तो 12 लाख ऑलरेडी आपका टीडीएस यहाँ दिख रहा है ऑनलाइन, वो 12 लाख आपको डिडक्ट मिलेगा, उसका डिडक्शन मिलेगा, टैक्स इज 0। तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न आपको अगेन टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, आपके अकाउंट में दिख रहा है, ऑनलाइन दिख रहा है, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। 100% क्लियर? यस। तो आज के बाद टीडीएस वर्ड है सामने तो घूरने का नहीं। क्या टीडीएस आता है? व्हाई टीडीएस इज दैट? एक गवर्नमेंट ने टीडीएस डाला, कंपनी को बोल दिया, समझ लो दिस इज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस लिमिटेड। टीसीएस में 6 लाख एम्प्लॉई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड फाइनेंस वाले पर्सन, 6 लाख एम्प्लॉई, 6 लाख। गवर्नमेंट देखो कितना कंट्रोल। आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वर्ड सुना? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑडिट का फंडामेंटल पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यहाँ आप सुनोगे ऑडिट में, डोंट वरी। इंटरनल कंट्रोल मीन गवर्नमेंट आराम से ऐसे बैठे हैं और तो भी टैक्स मिला, उसके अकाउंट में टैक्स आया। हाँ टैक्स आया, वेरी गुड, हाँ आया, वेरी गुड। गवर्नमेंट को कुछ नहीं करने का, तो भी टैक्स आ रहा है अकाउंट। कैसे? देखो यहाँ देखो, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर को बोल दिया, हर एक कंपनी को बोल दिया कि आपके अंडर जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, जिसका भी टैक्स आ रहा है, टैक्स कैलकुलेट कर लो, डिवाइड बाय 12 कर दो, 12 महीने में डिडक्ट कर दो, डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दो। वहां ऑनलाइन दिखेगा सामने वाली पार्टी को क्रेडिट मिलेगा। जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो 12 लाख आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, तो -12 लाख, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0। क्लियर? क्या? तो टीडीएस गवर्नमेंट ने देखो कुछ नहीं किया। अदरवाइज गवर्नमेंट इतने एम्प्लॉई है, 6 लाख एम्प्लॉई मेरे, अगर ये टीडीएस का प्रोविजन नहीं रखा होता तो क्या होता? सबको मैं पूरी सैलरी देता। अब इसमें से 15-20, 6 लाख में से 1000 एम्प्लॉय तो ऐसे निकलेंगे ही निकलेंगे। क्या नथी रिटर्न फाइल करूँ, नहीं भरना टैक्स, देख लेंगे क्या? तो ये 6 लाख को थोड़ा गवर्नमेंट चेक करने के लिए जाएंगे। 6 लाख को चेक करने के लिए कितने ऑफिसर्स चाहिए? गवर्नमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक ही स्टॉक खेला, फॉरगेट इट। कंपनी को बोला दोस्त आपको डिडक्ट करके ही पे करने का, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आप मर गए समझ लो। और यहां पेनल्टी डाली जबरदस्त, तो आपको एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा, यू कैन नॉट डेबिट टू योर पीएनएल अकाउंट, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो कोई कंपनी ऐसा नहीं करेगी। कंपनी को तो क्यों आलिया की टोपी मालिया पे, हेलो यहाँ मालिया तो बाहर है। माय क्वेश्चन इज यहाँ कंपनी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके मुझे डिडक्ट करके डिपॉजिट करना है। अगर मैं डिडक्ट ना करूं तो मुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो मैं क्यों ऐसा करूं? आपकी सैलरी में से, अरे गवर्नमेंट को बोलेंगे आप बोलो, एक बार बोलोगे तो पूरी सैलरी डिडक्ट कर देंगे। आप आवाज करो बस, डिडक्ट करके हमको डिपॉजिट करना है ना, हमको थोड़ा मेरे पॉकेट में से देना। क्या टीडीएस आपकी इनकम है, और हमारे प्रोफेशनल फीस में भी टीडीएस डिडक्ट होके आएगा। कल आप प्रोफेशनल बनोगे, अगर खुद की प्रैक्टिस रन करोगे, मेरी जितनी भी ऑडिट फीस आ रही है, ऑडिट फीस पे 10% टीडीएस डिडक्ट होके आता है। कंपनी की समझ लो मेरी 10 लाख रुपीस फीस है कोई कंपनी में, तो 10% मींस 1 लाख टीडीएस काट लेता है, 9 लाख मुझे पे करता है डायरेक्ट, चेक आता 1 लाख वो टीडीएस डिपॉजिट करेगा मेरे अकाउंट में, यहाँ ऑनलाइन दिखेगा। जब मैं मेरा रिटर्न फाइल करूंगा तब ये 1 लाख की क्रेडिट मिलेगा, 1 लाख मुझे माइनस मिलेगा। क्लियर? यस, वो टाइम पे वो एडजस्ट हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जहां से पेमेंट हो रहा वहां सोर्स पे डिडक्ट हो जाता है, तो कोई टैक्स चोरी का कोई पॉसिबिलिटी ना रहा है। क्लियर? Financial year cleared, 2 years cleared, previous year cleared, assessment year cleared, that we discussed already, उसमें मैं वापस टाइम पास नहीं करूंगा। इनकम क्लियर्ड, टैक्स ऑन पर्सन, या पर्सन की डेफिनेशन में वी हैव द 7 पर्सन्स। इनकम टैक्स में चलो मैं आपको एक चीज और अच्छी पढ़ाता हूं। In any fiscal law means it's a GST law, it's an income tax law. In any fiscal law, charging section must be there. Charging section होती है हर एक law में। Charging section means that sections decides the boundary for taxability. अगर उसकी बाउंड्री में आते हो ना तो ही टैक्सेबल, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल। क्लियर? तो इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 4 इज अ चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4 इज अ चार्जिंग सेक्शन। वो इतना ही बोलता है क्या, इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। ये तो कल से अतुल सर बोल रहे हैं, टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। तो इनकम क्लियर होनी चाहिए, पर्सन क्लियर होने चाहिए, ऑन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्लियर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर इज आल्सो क्लियर, एंड टैक्सेबल एट द रेट प्रिस्क्राइब बाय द फाइनेंस एक्ट। जो बजट में जो भी रेट है वो रेट से टैक्सेबल होगा। या तो सेक्शन 4 के दायरे में इट्स अ चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मींस यहां देखो, मोमेंट यू टच दैट चार्जिंग सेक्शन तो करंट लगेगा, क्योंकि यहां चार्जिंग हो रहा। चार्जिंग सेक्शन की बाउंड्री, चार्जिंग सेक्शन को आप टच करोगे तो ही इनकम टैक्सेबल है, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। आई रिपीट विथ एम्फेसाइज, कोई भी लॉ की चार्जिंग सेक्शन होती है। जीएसटी में अगर मैं बोलूं नजदीक से, इट इज अ चार्जिंग सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इट सेज इट सेज, एक ही मिनट, जीएसटी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ। अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो, सप्लाई मींस सेल, गुड्स सेल करते हो, सर्विसेज सेल करते हो तो जीएसटी लगेगा। मगर ये सेल ही नहीं करते आप तो नो जीएसटी ना। आपने गुड्स भी नहीं, सर्विस भी सेल नहीं किया, कुछ और सेल किया तो नो जीएसटी। लैंड सेल किया, लैंड यहां नहीं है तो नो जीएसटी। दैट्स इट। आपने आपका घर सेल किया, नो जीएसटी, क्योंकि ये गुड्स में भी नहीं है, सर्विस में भी नहीं है, नो जीएसटी। चार्जिंग सेक्शन को टच करोगे तो ही टैक्स लगेगा। मोमेंट यू टच द चार्जिंग सेक्शन, दैट पर्टिकुलर टैक्स वुड बी एप्लीकेबल। तो इनकम टैक्स में आई कैन से क्या, इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। अगर आप इनकम अर्न करते हो, टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में अगर इनकम अर्न करते हो तो ही इनकम टैक्स लेवी होता है। क्लियर? इट इज माय सेक्शन 4। अगर आप इनकम अर्न नहीं करते हो तो नो टैक्स इज एप्लीकेबल, नो टैक्स इज एप्लीकेबल। क्या अभी मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स में मैं उस पर ज्यादा हिट करूंगा, और भी सेक्शन 9 की हिट आएगी, इफेक्ट आएगी, तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा इंडिया में कौन सी इनकम कैसे टैक्सेबल होती है। या दैट विल डिस्कस इन दैट चैप्टर। या हाँ, पर्सन की डेफिनेशन में टच कर रहा था। पर्सन में 7 लोग हैं, एवरीबॉडी। इट्स एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। मैं 1 to 1 टच करता हूं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल। पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग हैं। इंडिविजुअल मींस यहां जितने भी लोग बैठे हैं सब इंडिविजुअल। आप खुद, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग इज नोन एज एन इंडिविजुअल। तो आपकी टैक्सेबिलिटी अलग होगी। आप जो भी इनकम अर्न करोगे वो आपके हाथ में टैक्सेबल है, आप इनकम अर्न करोगे वो आपके हाथ में टैक्सेबल है। क्लियर? सेपरेट टैक्सेबिलिटी वुड बी देयर, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। नंबर 2, आपने पार्टनरशिप फर्म का नाम सुना? क्या होता है
पार्टनरशिप फर्म? Two or more persons comes together for the purpose of earning the profit. प्रॉफिट अर्न करने के लिए दो और उससे ज्यादा लोग साथ में आते हैं और वो बिजनेस रन करता है, तो नॉर्मली इट्स नोन एज द पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म मे बी रजिस्टर्ड, मे नॉट बी रजिस्टर्ड. कुबेर भवन में रजिस्ट्रेशन होता है 4th फ्लोर. कभी भी पार्टनरशिप बनाओ, पार्टनरशिप डीड यहाँ ही ऑफिस में ही बन जाता है. पार्टनरशिप डीड दोनों पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब कुछ, पार्टनरशिप डीड इज रेडी. 500 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे ले लो, पार्टनरशिप डीड रेडी. और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कुबेर भवन में रजिस्ट्रेशन होता है. वाह, कुबेर भवन में रजिस्ट्रेशन करवा लो पार्टनरशिप फर्म. रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों पार्टनरशिप फर्म वैलिड फर्म ही. मगर फर्क इतना पड़ता है, अगर रजिस्टर्ड है तो आप कभी भी कोर्ट में जाना है तो आप जा सकते हो. पार्टनर्स में डिस्प्यूट होता है, कोर्ट में जाना है तो आप जा सकते हो. या अदरवाइज इफ देयर इज अ प्रॉपर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट इज ट्रीटेड एज अ पार्टनरशिप फर्म. तो पार्टनरशिप फर्म मींस वो मुझे नहीं पढ़ाना रजिस्टर्ड, मुझे इतना ही पढ़ाना है क्या, टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर टू कैरी ऑन द बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट. Normally it is known as partnership firm. Partnership firm is a separate person from the partners under income tax law. Individual is separate, partnership firm is separate. I give you the best example. My ASM company, chartered accountant, my firm is there, Atul Siddharth Mitesh, ASM. Yes, in this partnership firm we are 3 partners. My firm is different, I am different. firm में जो भी एएसएम में जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो एएसएम के हाथ में टैक्सेबल होगा, बिकॉज इट इज अ सेपरेट फर्म. एंड इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल अलग है, फर्म भी अलग है. तो फर्म की इनकम फर्म में टैक्सेबल होगी, मेरी इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी. दैट्स इट. यस और नो? या. तो फर्म का असेसमेंट सेपरेट होगा, फर्म का पीएनएल बनेगा, इनकम माइनस एक्सपेंस, फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड दैट प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30%. 100 रुपीज प्रॉफिट आता है, समझ लो 30 रुपीज हमने टैक्स भर दिया, बैलेंस 70 बचा. 70 हम तीन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. It is not taxable again in my end, क्योंकि ऑलरेडी फर्म ने टैक्स भर दिया. एवरीबॉडी इज क्लियर? क्योंकि सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस. तो फर्म ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है, तो अब जो प्रॉफिट मेरे हाथ में आएगा दैट इज नॉट टैक्सेबल. आई रिपीट, फर्म ने 100 रुपीज प्रॉफिट अर्न किया, हमने उस पर 30 रुपीज टैक्स पे कर दिया. फर्म ने बैलेंस कितना बचा? 70 हम तीन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर, whatever profit received from the partnership firm, it is not liable to tax based on the principle क्या same income cannot be taxed twice. Clear? Yeah. तो firm is a separate person, partner is a separate person. But you tell me, अगर पार्टनर की अलग कोई इनकम आ रही है, सैलरी इनकम भी आ रही है पार्टनर की, तो वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगा, मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा? सैलरी तो इंडिविजुअल अर्न कर रहा है, तो वो इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा. पार्टनरशिप की हमारी जितनी भी एडवाइजरी इनकम आ रही है वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगी. क्लियर? मुझे इतना ही कन्वे करना है, individual and partnership firm both are the separate person in the eyes of their income tax law. That is second party. Third party, it is a company. You tell me, company नाम आपने सुना है? कहाँ सुना है? क्या सुना? कंपनी. A company means, अगर मैं नजदीक से बोलूं तो it's an Indian company and the foreign company, यानी कि डोमेस्टिक कंपनी एंड द फॉरेन कंपनी. इंडियन कंपनी मीन कंपनी का बर्थ कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होता है? कहाँ होता है? आरओसी अहमदाबाद. आपको ये थोड़ा बेसिक्स जीके, कॉमर्स का जीके रखने का स्टार्ट कर दो. क्या इंडिया में अगर कोई भी कंपनी का बर्थ करना है, कंपनी का बर्थ हो सकता है 72 आवर्स में, 3 डेज में कंपनी का बर्थ हो जाता है. आज काफी फास्ट प्रोसीजर, ऑनलाइन ही सब कुछ फाइल कर दो, फटाफट कंपनी का बर्थ हो जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा. जिस तरह से आपका बर्थ हॉस्पिटल में हुआ होगा, इस तरह से कंपनी का बर्थ आरओसी ऑफिस में होता है अहमदाबाद. या हर एक स्टेट में एक ऑफिस है आरओसी की, रजिस्टर ऑफ कंपनी. हर एक स्टेट में एक है. कोई बड़े स्टेट है महाराष्ट्र, इसमें 2 आरओसी की ऑफिस है, अदरवाइज सभी स्टेट में एक आरओसी की ऑफिस है. गुजरात आरओसी में मोर देन 1 लाख कंपनीज आर देयर. इन इंडिया मोर देन 13 लाख कंपनीज आर देयर. 13 लाख कंपनी है इंडिया में टोटल. इसमें से 1 लाख से ज्यादा कंपनी गुजरात में है, इन द गुजरात आरओसी. तो अगर हमको कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो यहाँ गुजरात आरओसी में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. दैट इज फाइन. कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. कौन सा? अर्लियर एक्ट वाज 1956, नाउ इट इज कंपनीज एक्ट 2013. 2013 में उसका बर्थ होता है और अकॉर्डिंगली वो मैनेज होता है. तो दैट इज नो इंडियन कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में जिसका भी बर्थ हुआ दैट इज नोन एज द इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी. आउटसाइड इंडिया कोई कंपनी का बर्थ हुआ, समझ लो यूएस कंपनी एक्ट में, वहां यूएस में कोई कंपनी का बर्थ हुआ, इट्स अ गूगल,
इट्स एन एप्पल, क्या? तो जिसका यूएस में बर्थ हुआ, इट इज नोन एज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या बोलते हैं उसको? फॉरेन कंपनी। तो वेदर इट्स एन इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी, इफ दे आर अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया, इट इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। तो कंपनी में बोथ कंपनीज आर कवर्ड, इंडियन कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। या दैट इज कॉल्ड माय कंपनी। कंपनी दूर से पता चलता है, कैसे पता चलता है? ASMN कंपनी इज अ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म। इट इज अ पार्टनरशिप। कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड होता है या तो लिमिटेड होता है। इंडिया में मैंडेटरी, हाँ, या तो प्राइवेट लिमिटेड होता है या तो लिमिटेड होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट इज अ कंपनी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, कंपनी। इन्फोसिस लिमिटेड, कंपनी। अदानी विलमार लिमिटेड, कंपनी। फलाना फलाना प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी। GSFC लिमिटेड, कंपनी। बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड, कंपनी। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंपनी। तो जो यहाँ जिसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड आ रहा, इट इज माय इंडियन कंपनी। और फॉरेन कंपनी के पीछे कुछ बलता भी आता है काफी बार, तो दैट इज फाइन। पीछे इंक आता है, फलाना फलाना इनकॉर्पोरेशन, यूएस है तो ऐसा आता है, दैट इज फाइन। इफ तो माय क्वेश्चन इज, if it is incorporated in India or outside India, Indian company as well as foreign company, both are considered as a company. Yani body corporates also covered. That was number 3. Number 4, come to the 4. HUF. What is called HUF? Hindu Undivided Family. It is not the concept of income tax law. It is a concept of Hindu Succession Act 2005, amended act. हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, वहां से वो कॉन्सेप्ट आ रहा। इनकम टैक्स को उसके साथ कोई लेना देना नहीं। वो एक हिंदू फैमिली है, उसका किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह से पार्टीशन हो सकता है, किसका राइट कितना होता है, सन का राइट कितना है, डॉटर का राइट कितना है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा है। दैट्स इट। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी कि आप हिंदू, सिख और जैन, ये 3 फैमिली को बिलोंग करते हो, इन दैट केस आप आपका HUF बिल्टअप कर सकते हो। HUF मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप आपका HUF बिल्टअप कर सकते हो। व्हाट इज कॉल्ड HUF? यहां देखो, कॉमन एंसेस्ट्रल में से, कॉमन एंसेस्ट्रल मींस ग्रैंडफादर इज कॉमन, फॉर एग्जांपल कॉमन एंसेस्ट्रल में से जो फ्लो हो रहा, फादर अंकल, आप 2 ब्रदर, यहां 2 ब्रदर, ये कॉमन एंसेस्ट्रल के अंदर जितने भी मेल फ्लो हो रहे हैं कॉमन एंसेस्ट्रल में से, दैट उसकी वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, दिस वुड बी ट्रीटेड as Hindu undivided family. I repeat, मैं HUF के असेसमेंट में पढ़ाऊंगा, मगर यहाँ बेसिक्स देख लो। क्या कॉमन एंसेस्ट्रल है? समझ लो, मैं हूं, मैं, मेरी अंडर में, आई एम अ कॉमन एंसेस्टर, मेरी अंडर में जो फ्लोर है, समझ लो मेरे 2 सन है, गुड। मेरी वाइफ, यस, 2 सन है, कल वो 2 सन का भी मैरिज होगा तो उसकी वाइफ, कॉमन एंसेस्ट्रल के अंदर में जो फ्लोर है वो सभी मेल मेंबर्स, उसकी वाइफ्स and unmarried daughters would be treated as members of the HUF. ये मेरा HUF है। समझ लो, मैंने 2 चीज बनाई। एक तो मेरी खुद की इनकम आ रही है, सैलरी इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल इट इज टैक्सेबल इन माय इंडिविजुअल हैंड। तो आपने पर्सन की डेफिनेशन में देखा ना, इंडिविजुअल, वहां टैक्सेबल होगा। मैंने एक HUF बनाया, मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पड़ी थी, मैंने एक HUF बना लिया। मेरा HUF बन सकता है, जिस दिन आपका मैरिज होता है उस दिन आपका HUF बन सकता है। या नाउ आपका HUF आपने बना लिया है, क्या? अतुल एंड HUF, एक HUF बन गया, अतुल एंड फैमिली HUF। एक मैंने HUF भी बना लिया, उसमें वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। देखना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, जो मेरे पास कॉमन प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी उसमें ट्रांसफर कर दिया, उसका रेंट आ रहा। नाउ रेंट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द HUF। HUF के हाथ में वो इनकम आ रही है एंड मेरे हाथ में सैलरी टैक्सेबल हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों की सेपरेट इनकम हो गई, सेपरेट इनकम हो गई, सेपरेट इनकम हो गई। तो ऐसी जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है यू कैन ट्रांसफर टू द HUF, एंसेस्ट्रल बिजनेस है यू कैन ट्रांसफर टू द HUF, और वो HUF के हाथ में सेपरेट टैक्स। ऐसा क्यों करना चाहिए? अगर दोनों इनकम मेरे हाथ में ही आएगी तो आपको पता है ना, इंडिया में इंडिविजुअल का टैक्स रेट क्या है आज? चलो मैं आता हूं मैदान में। अब इंडिविजुअल का टैक्स रेट क्या है? अप टू 2.5 नो टैक्स, 2.5 टू 5 लाख 5%, 5 टू 10 लाख 20%, एंड मोर देन 10 लाख 30%। आई रिपीट, 2.5 तक आपकी इनकम है, 0 टैक्स। 2.5 टू 5 लाख है तो 5%, वो 2.5 लाख पे 5% कैलकुलेट करेंगे, वो गैप पे। 5 लाख टू 10 लाख जो गैप आता है वो गैप पे 20%,
एंड मोर देन 10 लाख है उस पर 30%। गुड। अगर समझ लो मेरी सैलरी 15 लाख आ रही है, गुड, मेरा रेंट आ रहा 15 लाख, गुड, अगर ये दोनों मेरे हाथ में आता तो 30 लाख मेरी इनकम होती। तो आपको पता चलता है कि ऊपर का जो रेंट मेरे पास है ना वो पूरा 15 लाख 30% में चला गया। यस और नो? यस। मगर वो एचयूएफ में ट्रांसफर कर दिया होता तो यहाँ भी 10 लाख तक ठीक है, उसके ऊपर का 5 लाख ही 30% में जाएगा, और यहाँ एचयूएफ को सेपरेट स्लैब मिलेगा। सेपरेट स्लैब बेनिफिट इज अलाउड टू एचयूएफ। मुझे बेनिफिट मिला स्लैब बेनिफिट, यहाँ सेकंड टाइम एचयूएफ को स्लैब बेनिफिट मिलेगा, तो एचयूएफ को सेपरेट स्लैब इज अलाउड, स्लैब बेनिफिट इज अलाउड। तो एचयूएफ को भी 10 लाख तक तो 30% में नहीं जाएगा, 10 लाख के ऊपर का पोर्शन है वही 30% में जाएगा, तो मुझे रेट का बेनिफिट मिलेगा। यस और नो? या। तो अकॉर्डिंगली लोग आज आपका लोग एचयूएफ भी बिल्टअप करते हैं। एचयूएफ बिल्टअप करने के लिए प्रैक्टिकली आपको दो ही चीज करनी पड़ती है। इफ यू आर फ्रॉम हिंदू, जैन और सिख फैमिली, क्या नंबर 1 आप एचयूएफ डीड बना लो, एक डीड बना लो एचयूएफ मेंबर्स जो है वो, उसका पैन कार्ड निकाल लो और उसका करंट अकाउंट ओपन कर दो, दैट्स इट। हाँ, तो जो एचयूएफ वाला है वो पोर्शन उसके हाथ में वहां जाएगा एंड अकॉर्डिंगली वुड बी टैक्स। क्या जहां क्लबिंग ब्लबिंग होता है वो हम सब डिटेल में पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। गुड। तो दैट इज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। या तो लोग इनकम टैक्स में लोग एचयूएफ क्यों बनाते हैं आज के बाद अगर पूछा जाए तो, टू हैव द सेपरेट स्लैब बेनिफिट, सेपरेट स्लैब बेनिफिट एंड कुछ डिडक्शन है, एटीसी ऐसा कुछ डिडक्शन है जो एचयूएफ को भी अलाउड है, तो वो भी एक मिलेगा। क्लियर? या उसके बाद एओपी एंड बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पर्सन की डेफिनेशन में कहां तक हम आए? फर्स्ट वन वाज इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन। सेकंड वन वाज पार्टनरशिप फर्म। थर्ड वन वाज कंपनी, इंडियन कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी। फोर्थ वन इज एचयूएफ। फिफ्थ वन इज एओपी एंड बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सॉरी it is association of person and body of individual, association of person and body of individual. You tell me one thing, ekdam simple, two or more person comes together to carry on the business, body of individual, दो इंडिविजुअल साथ में मिलकर बिजनेस करता है एंड इट इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई, मगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग के साथ ये लोग दोनों बिजनेस कर रहे हैं, एक एमओयू बना लिया। इन दैट केस if it is not a partnership firm then it would be treated as body of individual. one or two or more individual साथ में मिलकर अगर बिजनेस कर रहे हैं या तो कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, if there is no partnership firm in that case it would be treated as body of individual. दो इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूं। एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन में कितने लोग हैं? 7 लोग। 7 में से कोई भी 2 लोग साथ में आते हैं एंड वो साथ में बिजनेस करते हैं विदाउट पार्टनरशिप फर्म, तो दैट इज ट्रीटेड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यू टेल मी, चलो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं। फर्स्ट बेंच, आप दोनों अगर साथ में कोई बिजनेस करते हो तो चलो नवरात्रि में गरबा आपने साथ करिए, दैट इज बीओआई एओपी। ये दोनों इंडिविजुअल है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हाँ, तो इंडिविजुअल की बॉडी बीओआई। तो समझ लो एक कंपनी आई, रिलायंस साथ में आपके साथ आई, रिलायंस और मिस्टर एक्स, ये दोनों ने साथ में मिलके डिसाइड किया गरबा करना है। या इन दैट केस, हेलो दिस इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल है, वो तो कंपनी है। ये दोनों पर्सन में की डेफिनेशन में आता है, यस और नो? इंडिविजुअल एंड कंपनी, यस और नो? इंडिविजुअल एंड कंपनी पर्सन की डेफिनेशन में आता है, साथ में आता है, दोनों आता है। आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ आ रहा है, परफेक्ट। या individual is also part of 7 persons, company is also part of the 7 persons, so both are persons, that is association of persons. सिंपल है। हाँ, तो मैं ऐसा बोलूं, दो इंडिविजुअल होता, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी दोनों साथ में मिलकर अगर बिजनेस कर रही है तो दैट इज एओपी या बीओआई? एओपी। तो पार्टनरशिप एंड कंपनी दैट इज एओपी, यानी कि इट इज अ पर्सन। तो मैं इतना सिंपल बोलूं, 2 or more individual comes together to carry on the business, it is BOI. 2 or more persons comes together to carry on the business, it is called association of person. चलो मैं ब्रिलियंट स्टेटमेंट डिलीवर करता हूं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज ऑलवेज एओपी, बट एओपी क्यों बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यहां अगर नजदीक से देखो तो ऑलवेज बी एन एओपी। व्हाई? दो इंडिविजुअल है,
तो इंडिविजुअल इटसेल्फ इज अ पर्सन, यस और नो? ये दोनों पर्सन ही की डेफिनेशन में है ही दोनों। तो BOI ऑलवेज वुड बी ट्रीटेड एज आपके AOP, बट AOP नो, वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल। सो सिंपल। या उसके बाद कौन सा पर्सन रह गया? लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में कौन आता है? चलो मैं एक लाइन में बता दूं। या बड़ौदा है, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, BMC, इट इज अ लोकल अथॉरिटी। लोकल लेवल की अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास यहाँ कॉर्पोरेशन है। काफी लोग जो कॉर्पोरेशन, काफी डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन में नहीं है, उसमें जिला पंचायत होती है। क्या होता है? जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, जिला पंचायत, इट इज अ लोकल अथॉरिटी। तालुका लेवल पे क्या होता है? तालुका पंचायत, दैट इज अ लोकल अथॉरिटी। ग्रामीण लेवल पे क्या होता है? ग्राम पंचायत, दैट इज अ लोकल अथॉरिटी। तो सिंपल है क्या? इट्स अ कॉर्पोरेशन, इट्स जिला पंचायत, तालुका पंचायत एंड ग्राम पंचायत। These are treated as the local authorities. Local authority का मैं असेसमेंट पढ़ाऊंगा। लोकल अथॉरिटी में नॉर्मली उसकी जुरिस्डिक्शन में से जो भी इनकम आती है, नॉर्मली इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द लोकल अथॉरिटी। लोकल VMC की इनकम क्या होती है? पानी नो टैक्स, पानी वेरो, घर वेरो, फलाना वेरो, गटर वेरो, यस, ड्रेनेज वेरो, यानी कि ये सभी टैक्सेस आ रहा है यहाँ। तो VMC is collecting the taxes, yes or no? Local taxes, it is the revenue of the VMC. तो आज उसको 10, 11, 12, 13 वो सेक्शन में उसको एग्जाम्पशन दिया गया है। लोकल अथॉरिटी कुछ पोर्शन टैक्सेबल है, वो हम पर्टिकुलर असेसमेंट प्रोसीडिंग में देखेंगे। क्लियर? बट अभी आपको इतना याद रखना, अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए क्या सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो आपको पता चलना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में ये लोकल अथॉरिटी, आपको इतना याद रखना है। फलाना फलाना ग्राम पंचायत, भाईली ग्राम पंचायत, इट इज अ लोकल अथॉरिटी। तो ग्राम पंचायत से लेके वहां तक इट्स माय लोकल अथॉरिटी। क्लियर? एंड लास्ट इट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, AJP, क्या बोलते हैं उसको? AJP। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मींस 1 to 6 में कवर्ड नहीं है, एंड it has a legal entity, it has a legal existence. If these two criteria are satisfied, it is treated as artificial juridical person. क्या 1 to 6 में आना नहीं चाहिए? यू टेल मी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके इंस्टीट्यूट ICMI, वो पहले 1 to 6 में आता है कोई जगह पे? इट इज अ कंपनी? नो। इट इज अ फर्म? तो एकांकी पेटी? नो। फॉरगेट इट। इंस्टीट्यूट को 2 मिनट साइड में रखो। चलो मैं कोई और ट्रैक पे आया। एकांकी पेटी आप बोलते हैं ना, प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म कहाँ आएगी इसमें 1 to 6 में? हम गए हो, देख के गए ऑलरेडी। इंडिविजुअल, वेरी नाइस। प्रोप्राइटरशिप फर्म इटसेल्फ इज एन इंडिविजुअल। हां, देखिए ऐसा नहीं हो कल उठ के आप आपकी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे CMA की, आप अकेले ही हो, पार्टनर नहीं, अकेले। प्रोप्राइटरशिप फर्म तो आपका पेन नंबर और आपकी फर्म का पेन नंबर दोनों एक ही है। आप दोनों एक ही हो। अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हो तो देन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म बोथ आर डिफरेंट। मगर यही प्रोप्राइटर है, यही इंडिविजुअल है, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलो या तो इंडिविजुअल बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। आज के बाद कभी मिस्टेक ना हो। या योर इंस्टीट्यूट कम्स टू द पॉइंट। 1 to 6 में आता है, इट इज अ कंपनी, इट इज अ पार्टनरशिप फर्म, इट इज अ लोकल AOP, BOI, ऐसा कुछ भी है? नथिंग। तो 1 to 6 में कवर नहीं है, एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। हाँ, कोई लॉ में उसका बर्थ हुआ। आपका स्पेशल एक्ट है 1959, क्या कॉस्ट अकाउंट्स एक्ट 1959, आपका सेपरेट एक्ट है, पार्लियामेंट का एक्ट है। पार्लियामेंट में वो एक्ट पास हुआ है, उसके अंडर में आपके इंस्टीट्यूट का बर्थ हुआ। तीन इंस्टीट्यूट, CS, ICW, तीन इंस्टीट्यूट का बर्थ वहां हुआ पार्लियामेंट। तो यू टेल मी व्हाट इज कॉल्ड AJP? 1 to 6 में कवर्ड नहीं है, एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। देन इफ दिस टू कंडीशन satisfied will be treated as AJP। तो चलो आप मुझे बताओ, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, AJP। सेबी, AJP, सेबी। क्या 1 to 6 में नहीं है, और उसका सेबी एक्ट है, सेपरेट एक्ट है, पता चलता। RBI, AJP। कोई भी इंस्टीट्यूशन देख लो ना वो कि जो 1 to 6 में नहीं आता और सेपरेट लॉ में उसका बर्थ हुआ, वुड बी ट्रीटेड एज AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कितने पर्सन थे? वो 3। ओके, यहाँ से वो ना, हाँ, वो गब्बर था ना, गब्बर ने
कितने लोग थे? 10। हाँ, यहाँ फर्स्ट इज इंडिविजुअल, HUF, सीक्वेंस आपके बाद ये रहेगा, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड HAP। इसमें किसी को कोई भी जगह पे क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर डाउट प्लीज। चलो मैं क्वेश्चन रेज करता हूं, आपने नहीं पूछा तो। क्यों इनकम टैक्स लो? जो वाई का आंसर आता है ना, वाई, कोई भी चीज में वाई का आंसर मिल गया ना, मींस मैटर क्लॉज, लॉजिक इज क्लॉज, लॉजिक इज क्लियर। क्यों इनकम टैक्स लॉ में 7% डिफाइन करना पड़ा? अगर सबको टैक्सेबल ही करना है तो बोलो ना सब टैक्सेबल, क्या ये 7% डिफाइन कर रहे हो? Why 7% are defined? Why definition of person is required in income tax law? Why? क्यों जरूरत पड़ी? हर चीज की जरूरत पड़ती वही लॉ में आता। हाँ सर, सबके इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस अलग है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स सर, या फंक्शनलिटी अलग है। और क्या गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है? आप पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटर हो, गवर्नमेंट इतना ही बोल देती हो सबको टैक्स भरना है, खत्म। जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है सबको टैक्स भरना है, दैट्स इट। सर रेट इज नॉट, सर कौन से रेट पे भरना है वो नहीं पता ना। ओके 7% इसीलिए डिफाइन किया गया, सबका रेट अलग अलग है। आई रिपीट नाउ, इंडिविजुअल, मेरे साथ रहना, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड HAP, ये 5 लोग को ही स्लैब बेनिफिट मिलेगा, स्लैब बेनिफिट मिलेगा। एंड मोमेंट आई से स्लैब बेनिफिट, व्हाट इज अ स्लैब बेनिफिट? अब सुन लो मुझे अच्छी तरह से। ये 5 लोग के लिए स्लैब बेनिफिट इज, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन मींस 80 प्लस आपकी एज है एंड यू आर रेसिडेंट इन इंडिया, दो कंडीशन फुलफिल। 80 प्लस एज है एंड यू आर रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट क्या है मैं आप पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आप ऐसा मानो ना आप मेरे लोग हो। हाँ, आपकी एज 80 प्लस है एंड रेसिडेंट इन इंडिया हो, यू शैल बी ट्रीटेड एज सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब क्या है जो मैं आपके सामने रखता हूं? एवरीबॉडी अप टू 5 लाख नो टैक्स। कितना? 5 लाख नो टैक्स। 5 लाख टू 10 लाख कितना? जो गैप आता ना, गैप, एक गैप पे 20%, कितना? 20%। एंड मोर देन 10 लाख जितनी भी इनकम है उस पे 30%। तो अप टू 5 लाख नो टैक्स, 5 to 10 20%, एंड मोर देन 10 30%। दैट इज फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन पे आ जाओ। व्हाट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन? 60 प्लस बट below 80 and you are resident in India, then you are senior citizen. Senior citizen के लिए what is the slab in India? Up to 3 lakh no tax, 3 to 5 5%, 3 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20% same, more than 10 lakh 30% same. Clear? Yeah. अगर आप 60 से छोटे हो, 60 से आपकी एज कम है, then what would be your rate? मैंने 80 प्लस बताया, 60 प्लस का बताया, 60 से कम है, यानी कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग, अगर आप कल इनकम अर्न करते हो तो व्हाट वुड बी योर स्लैब बेनिफिट? अप टू 250 नो टैक्स, 250 to 5 5%, 5 to 10 20%, एंड मोर देन 10 30%। ये इंडिविजुअल, तीन कैटेगरी का इंडिविजुअल का हिसाब हो गया। अब कौन बचा? कौन? मैंने तो 5 लोग बोला था ना, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड HAP। इंडिविजुअल का हिसाब हो गया तो बाकी 4 बचा ना, और ये 4 लोग को भी ये बेसिक स्लैब वाला मिलेगा। कौन सा था वो? 250 वाला। अप टू 250 नो टैक्स, 250 to 5 5%, 5 to 10 20%, एंड मोर देन 10 30%। तो प्रैक्टिकली 3 ही स्लैब है। सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख वाला, सीनियर सिटीजन 3 लाख वाला, एंड बाकी सबके लिए 2.5 लाख वाला। मगर बाकी सब में कौन लोग आते हैं? इंडिविजुअल बिलो 60, HUF, AOP, BOI एंड HAP। तो 5 लोग को ही स्लैब बेनिफिट मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी नो स्लैब बेनिफिट, डायरेक्ट फ्लैट टैक्सेबिलिटी 30%। हेलो, पार्टनरशिप की जितनी भी प्रॉफिट होता है ना ASM में समझ लो, पूरे साल में अगर 1 crore इज माय प्रॉफिट, 30% टैक्स फ्लैट, कोई स्लैब लैब नथिंग, डायरेक्ट 30% हिट करने का, मींस 30 लाख इज माय टैक्स लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप फर्म को नो स्लैब बेनिफिट, कंपनी को नो स्लैब बेनिफिट, लोकल अथॉरिटी को नो स्लैब बेनिफिट। क्लियर? 5 लोग के लिए यहाँ स्लैब बेनिफिट ओपन है।
इसीलिए पर्सन की डेफिनेशन अलग अलग करना पड़ा, दैट इज फर्स्ट थिंग। नंबर 2, और भी काफी बेनिफिट्स ऐसे हैं जो इनकम टैक्स लॉ में, जो स्पेसिफिक पर्सन को गवर्नमेंट ने दिया कि पार्टनरशिप फर्म के लिए ये बेनिफिट कंपनी के लिए ही, हमारी कंपनी के लिए ही, तो इसीलिए 7 पार्ट में डिवाइड किया है। तो गवर्नमेंट को जब बेनिफिट देना था, रेट का बेनिफिट देना था, कुछ और बेनिफिट देना था, डिडक्शन का बेनिफिट देना था, वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग बेनिफिट है, इसीलिए गवर्नमेंट ने 7% में डिवाइड कर दिया, पर्सन की डेफिनेशन को 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर? लॉजिक इज 100% क्लियर? यस, परफेक्ट परफेक्ट। So that was all about the person. Annual tax, yeah. Income tax आपको कौन से साल में आप इनकम अर्न करते हो? Previous year. It is the year in which income is earned. An assessment year में आप income is tax. Income is tax. आप टैक्स पे कब करते हो? Previous year में या assessment year में? Normally it is payable in assessment year, but by way of advance tax. आपको प्रीवियस ईयर में 4 इंस्टॉलमेंट दिया है, जो कल मैंने डिस्कस किया था। करंट ईयर में अगर मैं इनकम अर्न कर रहा हूं, तो करंट ईयर में मुझे 4 इंस्टॉलमेंट में कुछ एस्टिमेट के बेसिस पे टैक्स पे करना है, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। कौन से 4 इंस्टॉलमेंट की डेट थी, एक बार याद करो। 15 जून, फर्स्ट क्वार्टर में 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। तब तक आपको एस्टिमेट के बेसिस पे आपको पूरा टैक्स एक बार भर देने का। क्लियर? बाद में जो भी डिफरेंस आता है ना रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे, वो डिफरेंस वो टाइम पे भर देने विथ इंटरेस्ट, वो टाइम पे, क्योंकि आपने एडवांस टैक्स में डिफॉल्ट किया पेमेंट। या बी क्लियर? अदरवाइज कोई भरेगा नहीं। गुड। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट इज क्लियर। फाइनेंस एक्ट क्लियर। एग्जामिनेशन एप्लीकेबिलिटी, हेलो, व्हाट इज आवर प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज आवर असेसमेंट ईयर दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे? माय प्रीवियस ईयर इज when the इनकम income is ऑन करते हैं वो 21, 22. Assessment year would be 23 for December exam. For December exam that we clarified. कल उसकी मैंने फाइनेंस एक्ट थ्रू कंप्लीट क्लैरिफिकेशन दे दिया, मगर अब आपको माइंड में फिट कर लेना है क्या? फाइनेंस एक्ट 21 would be part of my examination hall and previous year would be 21, 22. Assessment year would be 22, 23. तो उसके रिलेवेंट जो भी प्रोविजंस है वो प्रोविजंस हम गो थ्रू करने वाला है विद अमेंडमेंट। एसएससी, वो एसएससी नहीं हो 10th एंड 12th वाला। हेलो, हाँ, एचएससी की बात नहीं कर रहे, एसएससी की भी बात नहीं, ये कुछ और एसएससी है। यहाँ एसएससी डिफाइन किया है इनकम टैक्स लॉ में। मैं 1 मिनट में आपके सामने रखता हूँ एसएससी। व्हाट इज कॉल्ड एन एसएससी? एसएससी मीन 4 लोग, 4 persons आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द एसएससी। 4 कैटेगरी है, 4 कैटेगरीज आर देयर। आई रिपीट, नॉट रिपीट, स्टार्ट ही कर रहा हूं ना। फर्स्ट, नजदीक से वर्ड टू वर्ड जाना। द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, कैटेगरी 1। कैटेगरी 1, पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। हु इज लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया? who is registered, हु इज अर्निंग इनकम? नहीं, दैट इज हाफ आंसर। कितनी इनकम? अरे अबो स्लैब बोलो ना, अबो बेसिक स्लैब। बेसिक स्लैब से ऊपर आप इनकम अर्न कर रहे हो, यू आर लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। आप अगर पूरे साल में 1 लाख रुपया इनकम अर्न कर रहे हो, यू आर नॉट एन एसएससी, यू आर अ पर्सन। आप इंडिविजुअल हो बट यू आर नॉट एन एसएससी। आपको इनकम टैक्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं, जलसा करो बिंदास। 1 लाख की इनकम अर्न कर रहे हो, आपको कोई, आपके वहां कोई रेट पाड़ने के लिए नहीं आएगा, डोंट वरी। यू आर नॉट एन एसएससी। एसएससी मींस the person who is liable to pay tax. Moment you cross the slab, basic slab 250, आपकी इनकम टैक्सेबल हो रही है, now you are liable to pay tax. Moment you cross 250, you become an SSC. Clear? चलो, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म ने 1 रुपये इनकम अर्न किया, इट इज एन एसएससी, यस और नो? पार्टनरशिप फर्म में स्लैब बेनिफिट मिलता है? नो। तो मोमेंट अर्न द सिंगल रूपी, इट बिकम्स एन एसएससी, liable to pay tax. Clear? Yes. तो आपकी जो स्लैब है उसके ऊपर आप अगर इनकम अर्न कर रहे हो, moment you cross that slab, you become an SSC. The first category is the person who is liable to pay tax. Liable to pay tax. आप जिंदा हो तो उसका मतलब नहीं हो आप एसएससी हो। आप इनकम अर्न कर रहे हो, then you are an SSC. That is first. Number 2,
you are not liable to pay tax, but any proceeding has been initiated by the department or by you, meaning that आपकी इनकम 250 से कम है, मगर डिपार्टमेंट का एक नोटिस आया आपके नाम का, इनकम टैक्स में से नोटिस, थोड़ी और पकड़े हो, इनकम टैक्स में से, हाँ, इनकम टैक्स में से एक नोटिस आया आपके नाम का. Moment you get the notice, that is called proceedings. Any proceeding started. I repeat, you are not liable to pay tax. आपकी इनकम 250 से कम है, but any proceeding has been initiated. Proceeding को start हुआ. Proceeding means डिपार्टमेंट की साइड से लेटर आया, उसका हम जवाब दे रहे हैं. डिपार्टमेंट की नोटिस आई, उसका हम जवाब. That is a proceeding initiated. Yes or no? Yeah. कोई भी अगर नोटिस आपको मिलता है, मोमेंट यू रिसीव द नोटिस, यू बिकम एन एसएससी. बस अब लाइन में आ जाओ. जो भी डिपार्टमेंट पूछे उसका आंसर दिया जाए प्रॉपर्ली. क्लियर है? या बाद में ऐसा नहीं बोल सर मैं तो वड़ा पाव ही सेल कर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ ऐसा होता नहीं. अरे वड़ा पाव वाले के वहां से करोड़ कैश निकलती है, या करोड़ में कैश निकलती है. तो मोमेंट यू रिसीव द नोटिस, यू बिकम एन एसएससी. बाद में ऐसा नहीं बोलेगा सर हमने तो लास्ट 3 पेटी में किसी ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, हम तो 3 पेटी से वड़ा पाव ही सेल कर रहे हैं. कितना सेल कर रहे हो? साल में 1 करोड़ का तो सेल करते हैं. हाँ, that should not happen. यानी कि what is my first category? Person who is liable to pay tax. What is my second category? Proceeding has been initiated. Number 3, it is a representative SSC. Represent you are, आप किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हो. किसी और को कब रिप्रेजेंट करोगे? इन केस ऑफ एनआरआई. एनआरआई बाहर है, आपके फ्रेंड ने आपको अथॉरिटी दिया, तो कुछ भी आता है तो तेरे नाम पे यहाँ आएगा, तू देख लेना. या आपके पास अथॉरिटी आपके फ्रेंड की पूरी. यू आर रिप्रेजेंटिंग योर फ्रेंड्स, यू आर रिप्रेजेंटिंग द एनआरआई, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. नंबर 2, इन केस ऑफ माइनर. माइनर आपको पता है ना, 18 से कम एज वाले बच्चे सब माइनर माने जाते हैं. माइनर उसके पेरेंट्स के नाम, पेरेंट्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी इन केस ऑफ द माइनर्स. एंड नंबर 3, ट्रस्टी. ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट में ट्रस्टी होते हैं. तो ट्रस्टीज आर द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ऑफ द ट्रस्ट. दे आर रिप्रेजेंटिंग द ट्रस्ट. तो नजदीक से देखो कौन, तो एनआरआई का यहाँ ऑथोराइज एजेंट है, माइनर का गार्डियन है, एंड ट्रस्ट के ट्रस्टीज है. दे आर रिप्रेजेंटिंग अदर पर्सन, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. किस क्या बोलेंगे उसको? इन द कैपेसिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आपको नोटिस मिल सकती है, आपको आंसर देना पड़ेगा डिपार्टमेंट. एंड नंबर 4 लास्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट. इन डिफॉल्ट आपने जानता और अजानता कोई लॉ वायलेट किया, इनकम टैक्स लॉ वायलेट किया, आपने कोई भी प्रोविजन आपने वायलेट किया, यू बिकम एन एसएससी इन डिफॉल्ट. एसएससी इन डिफॉल्ट. अब आपको नोटिस का आंसर देना पड़ेगा क्योंकि यू हैव वायलेटेड द लॉ. समझ लो, आपकी इनकम 250 से कम है, 250 से कम है तो पहले में नहीं आते, आपको कोई नोटिस नहीं मिला तो दूसरे में नहीं आते, आप किसी को रिप्रेजेंट नहीं करो तो तीसरे में भी नहीं आते. मगर आपकी इनकम 250 से कम है, आप बिजनेस चला रहे हो, कड़क बाजार में आपकी शॉप है, आप बिजनेस चला रहे हो, आपकी इनकम पूरे साल में प्रॉफिट 2 लाख होता है, तो 4 में से एक जगह पे नहीं आता. देखो, यू आर लायबल टू पे टैक्स, नो. आपको कोई नोटिस मिला, नो. आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नो. यू वेदर यू हैव वायलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, वो देखना पड़ेगा सर. क्या समझ लो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपके वहां 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 की सैलरी है 5.5 लाख, 5.5 लाख, 5.5 लाख, 5.5 लाख, सबकी सैलरी इतनी. बोलो, आप जिसको सैलरी दे रहे हो ना, उसका टीडीएस काट के सैलरी पे करना चाहिए. टीडीएस काटना पड़ेगा. मैंने अभी बताया ना, एम्प्लॉयर विल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स. टीडीएस काटना भूल गए, मतलब यू हैव डिफॉल्टेड, यू हैव मेड द डिफॉल्ट. यस और नो? यू हैव वायलेटेड द लॉ. आपने कोई भी सेक्शन वायलेट की, मतलब यू बिकम एसएससी इन डिफॉल्ट. एसएससी इन डिफॉल्ट. तो 4 कैटेगरी है. आई रिपीट नाउ. नंबर 1, पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स. सेकंड, any proceeding has been initiated against you. Number 3, representative SSC. And number 4, SSC in default. एक चीज मुझे ये बताओ कि पर्सन की डेफिनेशन तो थी, तो एसएससी की डेफिनेशन क्यों लेके आए? Why? Sir, in SSC only 4 persons are included, whereas in person there are 7. नहीं, यहाँ ये 4 में 7 आ जाते. कितने लोग अग्री? ये 4 में 7 आ गए.
जिसकी इनकम 250 से ज्यादा है वो सब भी फर्स्ट में ही आ गए, सातों साथ आ गए फर्स्ट में ही। क्या एनी अदर ओपिनियन? हेलो, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग जो स्टार्ट होगी ना, प्रोसीडिंग नोटिस अप्लाई लव लेटर डिपार्टमेंट के में से आएगा ना, वो जो प्रोसीडिंग पूरी स्टार्ट होगी और आपको जो रिस्पॉन्ड करना है, एसएससी को ही नोटिस मिलेगा। इफ यू आर एन एसएससी तो ही आपको पूरी लॉ की इम्प्लीकेशन है। अगर इफ यू आर नॉट एन एसएससी, आप 4 में से 1 में भी नहीं आते, आपकी इनकम 1 लाख रुपीस है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया, नथिंग, यू आर नॉट एन एसएससी, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनकम टैक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। उसकी इम्प्लीकेशन के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू मस्ट बी फर्स्ट एन एसएससी। अब एसएससी बनते हो, बाद में ही आपको लीगल कंप्लायंस पिक्चर में आता है। क्लियर? या यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन है, एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, उसका कंप्लायंस है, वो पिक्चर में आएगा। बिग क्लियर। या so that is my person, this is my SSC. एडवांस टैक्स क्या था, कौन से 4 इंस्टॉलमेंट था? 15 सितंबर, सर वो डेट याद रहेगी, 15। वेरी नाइस। टीडीएस क्या पढ़ा हमने टीडीएस में? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ही, पेयर विल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉयर विल डिडक्ट। मैंने आपको सैलरी का एग्जांपल दिया, मैंने प्रोफेशनल फी का एग्जांपल दिया, मेरी ऑडिट फी में डिडक्ट होकर आएगा। इससे काफी चीज है। डोमेस्टिक में टोटल मोर देन 15 आइटम्स आर देयर जिस पे टीडीएस एप्लीकेबल है। टीडीएस किसकी इनकम है? इट इज माय इनकम या इट्स हिज इनकम? किसकी इनकम? समझ लो मेरा 1 लाख ऑडिट फी था, मैंने बिल भेजा, मुझे 90,000 दिया, 10,000 उसने टीडीएस काट लिया, वहां डिपॉजिट किया, यहाँ ऑनलाइन 10,000 दिखा, तो 90,000 मुझे चेक मिल गया, 10,000 बाय वे ऑफ टीडीएस मिल गया, टोटल 1 लाख ही मुझे मिला। इट इज माय इनकम इज 1 लाख। 1 लाख पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा, जो भी टैक्स समझ लो 12,500 टैक्स आया एट द एंड ऑफ द ईयर, 12,500 टैक्स आया। 12,500 में से ऑलरेडी 10,000 मैंने पे कर दिया गवर्नमेंट को, उसने पे किया ना, मेरा काट के उसने वहां ही पे किया ना, यस और नो? माय टैक्स इज डिडक्टेड बाय टाइम एंड उसने डिपॉजिट किया है, वो मेरा ही अमाउंट है 10,000। जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ 12,500 टैक्स आ रहा, तो उसमें से 10,000 माइनस मिलेगा। अभी मुझे कितना भरना पड़ेगा? 2,500। क्लियर? या इट इज एज गुड एज माय रिसिप्ट, इट इज एज गुड एज माय रिसिप्ट। या टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इट इज द बेस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेट अप बाय द गवर्नमेंट। हाँ, वो कल मैंने इनकम पढ़ाया आपको, 5 हेड। कौन से 5 हेड थे? 1 मिनट के लिए रिपीट करो। इनकम अंडर दैट सैलरीज, एचपी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 हेड का टोटल करेंगे, दैट इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। वेरी गुड। ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 है डिडक्शन, 80C to 80U डिडक्शंस आर परमिटेड, रिजल्ट वुड बी टैक्सेबल इनकम, दैट इज आल्सो नोन एज टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम का 2 नाम है, टोटल इनकम या तो टैक्सेबल इनकम। बिग क्लियर। ये सरचार्ज क्या? टैक्स के ऊपर टैक्स, सरचार्ज। आपको पता है, यहाँ देखो आज इंडिया में ऐसा प्रोविजन है सरचार्ज का। बड़े लोग पे सरचार्ज है, छोटे लोग पे नहीं है, डोंट वरी। छोटे लोग इन दी सेंस जिसकी इनकम 50 लाख से कम है ना, 50 लाख, आपकी सैलरी इनकम जब तक 50 लाख ना हो तब तक सरचार्ज नहीं लगेगा, डोंट वरी। शांति, पहला 5 वर्ष तो कोई टेंशन नहीं। माय क्वेश्चन इज यहाँ है, अब जो करोगे अगर बाद में आगे जाके तो मींस आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है आपकी सैलरी। यहाँ आपकी पर एनम इनकम अगर 50 लाख से कम है तो आपको नॉर्मल टैक्स भरना है, जो भी मैंने स्लैब पढ़ा है ना, उस स्लैब के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट कर लेना। दैट इज कॉल्ड बेसिक टैक्स। क्या बोलते हैं? बेसिक टैक्स। सरचार्ज 0। क्या बोलते हैं? 0 अगर 50 लाख तक आपकी इनकम है तो। एंड बेसिक, ये दोनों का टोटल आता है ना, बेसिक प्लस सरचार्ज, टोटल पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इस पे। क्या बोलते हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उस पे 4% लगेगा दोनों के टोटल पे। कौन से दोनों के टोटल पे? बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, जो टोटल आएगा, टोटल पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा। समझ लो योर इनकम 50 लाख को क्रॉस हुआ तो अब सरचार्ज पे पिक्चर में। पहले जो मैंने स्लैब पढ़ाया उसकी मुताबिक बेसिक टैक्स कैलकुलेट कर लो, बेसिक टैक्स वर्कआउट कर लिया, प्लस 10% सरचार्ज, 10% ऑफ योर टैक्स। इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। जितना टैक्स आया था आपका, समझ लो आपकी इनकम है 90 लाख, 90, उस पर बेसिक टैक्स आपने वर्कआउट किया, समझ लो 25 लाख आ रहा, 25 लाख।
तो सरचार्ज कितना आएगा 10%, 2,50,000 सरचार्ज। तो टोटल टैक्स कितना हुआ? बेसिक टैक्स 25 लाख, सरचार्ज 2,50,000, टोटल इज 27,50,000। उस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। टोटल कर दो, उतना पे कर दो। क्लियर? ये 1 करोड़ तक वाले का था। 1 करोड़ से 2 करोड़ में अगर आप गए तो सरचार्ज का रेट 15% है। बेसिक टैक्स तो भरना ही हो 30% वाला प्लस सरचार्ज। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक गए, सरचार्ज का रेट है 25%। एंड मोर देन 5 करोड़ आपकी इनकम है तो सरचार्ज रेट इज 37%। बेसिक टैक्स भी लगेगा ही 30% वाला, एंड 37% ये भी आएगा, तो इफेक्टिव टैक्स रेट वुड बी 50%। पता चलता है? या हाई नेटवर्थ पीपल जिसकी इनकम हाई है, बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े एमडी होते हैं ना, जिसकी इनकम सैलरी तो 10 करोड़ है, ये है, એમાંથી આ 50% दाम है। माय क्वेश्चन नहीं, सब लोग टैक्स भर रहे हैं इसलिए देश चल रहा है ना, डेफिनेटली इसलिए ये सब कुछ चल रहा है, एंड इट इज अवर प्राइम रिस्पांसिबिलिटी। जितना लीगली हमारा टैक्स आ रहा है वी विल हैव टू डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी। तो सरचार्ज आपको पता चल गया व्हाट इज परसेंट, और सरचार्ज का रेट पूरा चार्ट, सरचार्ज का रेट पूरा चार्ट, कंपनी को कितना है, पार्टनरशिप फर्म को कितना है, इंडिविजुअल को कितना है, वो हम एक पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे, टैक्स लायबिलिटी वाला चैप्टर में। वहां हम डिटेल में पूरा चार्ट में लिखूंगा। जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं कभी भी कोई भी लेक्चर में अगर मैं वर्ड यूज करूं सरचार्ज, तो ऐसा ना ऊपर से गया सर की ऊपर से जाए वो सरचार्ज, दैट शुड नॉट हैपन, दैट शुड नॉट। एजुकेशन सेस इज क्लियर? या एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4% है आज, 4%। देखो अलग अलग बलता आता है, एजुकेशन के लिए एजुकेशन सेस लगे, हेल्थ के लिए हेल्थ सेस लगे। गवर्नमेंट ऐसा बोलती है एजुकेशन में से जो सेस में से जो इनकम आएगी उसमें से हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ सेस में से जो सेस आएगा उसमें से हम हेल्थ प्रोवाइड करेंगे। कल गवर्नमेंट कुछ और भी बोलेगी क्या, ये प्रोफेशनल एजुकेशन टैक्स सेस। कल गवर्नमेंट और भी बोलेगी पीएचडी सेस, ऐसा नया नया नाम आ रहा है। ठीक है सर, अगर सरचार्ज होगा तो ही हम लोग हेल्थ और एजुकेशन से अप्लाई करेंगे? नो, मैंने दोनों सिनेरियो आपके सामने रखा। एवरीबॉडी, अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है या तो ज्यादा है, कम है तो आपको बेसिक टैक्स आएगा, सरचार्ज 0, टोटल कर दो, टोटल पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% पे करना ही है ऑलवेज, बेसिक एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज आएगा। क्लियर? सरचार्ज है वो डिपेंड करता है आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस हुआ तो तीनों तीन आएगा। सो सिंपल। या तो एजुकेशन सेस को कोई कनेक्शन नहीं है, डोंट वरी, कोई रिलेशनशिप नहीं। आई होप इट इज क्लियर। और रिबेट अंडर सेक्शन 87A है, 87A में एक रिबेट है। यहाँ काफी लोग नहीं बोलते सर 5 लाख तक। अतुल सर ने 2 कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। अतुल सर ने जब स्टार्ट किया सेशन तब ऐसा बोला 5 लाख तक किसी को भी टैक्स नहीं भरना, और बाद में वो घूम गए 250 बेसिक स्लैब 250 टू 5 लाख 5%। तो सर आप तो कुछ अलग बात कर रहे थे वो स्टेटमेंट में, किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया मेरे सामने। यहाँ देखो मैंने बराबर ही स्टेटमेंट डिलीवर किया है। अगर आपकी इनकम एग्जैक्ट 5 लाख है ना, 5 लाख तो नो टैक्स आएगा। देखना आप सुपर सीनियर सिटीजन नहीं हो, सीनियर सिटीजन नहीं हो, आप बिलो 60 हो, आपकी एज 30 ईयर है, आपकी इनकम एग्जैक्ट 5 लाख है, 5 लाख है, देखना कितना टैक्स आता है। आपको कौन सा स्लैब एप्लीकेबल है, वो थर्ड वाला 250 वाला ना, तो वर्कआउट करो अप टू 250 नो टैक्स, 250 टू 5 लाख ऊपर का जो 250 है ना बैलेंस डिफरेंस, वो डिफरेंस पे 5%, तो कितना था 250 पे 5%, 12,500, इसमें से रिलीफ मिलेगा 87A में रिलीफ मिलेगा, मैक्सिमम रिलीफ इज 12,500, तो 12,500 आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो टैक्स इज 0, इफेक्टिवली 0, तो बेसिक टैक्स में से आपको रिलीफ बाद मिल जाएगा। तो जो सीक्वेंस ऐसा है, सीक्वेंस माय बेसिक 505 हेड दैट इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 80C टू 80U टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे मैं रेट अप्लाई करूंगा स्लैब, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक टैक्स। क्या बोलेंगे? माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जितनी भी आपको मिलती है वो माइनस कर दो, तो डिफरेंस बचेगा। सरचार्ज तो उसमें आता ही नहीं, अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज ऐड करो, टोटल कर दो, टोटल पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओ। आई रिपीट, जो आपकी टैक्सेबल इनकम आई उस पे आपको बेसिक टैक्स वर्कआउट करना है, माइनस आपको रिबेट मिलेगा 87A का,
अगर आप एलिजिबल हो 87A की कंडीशन है 3-4, अगर वो कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो 12,500 के रिबेट मिलेगा। गुड। सो बैलेंस टैक्स बचेगा, दैट इज कॉल्ड बेसिक टैक्स। अगेन बेसिक टैक्स क्या बोलेंगे? बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, वो आपको पता है सरचार्ज कब लगाना। मेक द टोटल प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज इक्वल टू योर टोटल टैक्स पेएबल, योर टोटल टैक्स लायबिलिटी दैट यू विल हैव टू डिस्चार्ज। सो सिंपल। 87A की रिबेट जिसकी इनकम 5 लाख से कम है उसको ही मिलता है, छोटे लोग के लिए है। एंड यू मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया। आप रेसिडेंट होना चाहिए, आप इंडिविजुअल होना चाहिए। 3 कंडीशन है, आप इंडिविजुअल होना चाहिए, 7 में से एक ही पर्सन एलिजिबल है इंडिविजुअल। यू मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया एंड आपकी इनकम 5 लाख या तो उससे कम है। इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर रिलीफ मैक्सिमम 12,500। वो रिलीफ के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो आज के बाद आपके माइंड में वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ना रहे। प्रैक्टिकली अगर 5 लाख की आपकी इनकम है तब तक टैक्स जीरो आता है, तब तक टैक्स जीरो आता है बिकॉज ऑफ दैट रिलीफ, दैट रिलीफ। Capital receipt, revenue receipt. You tell me, a capital receipt and revenue receipt, it depends upon what? Depends upon what? Whether the particular receipt is a capital receipt या particular receipt is a revenue receipt for me. कौन से ग्राउंड पे हम डिसाइड करेंगे? हाँ? જે વેચાણ થતું હોય તે રેવન્યુ રિસીપ્ટ ને જે મોટી કોઈ મશીનરી કે કઈ આપણે ખરીદીએ તે કેપિટલ રિસીપ્ટ. सोर्स इज सोल्ड आउट। हेलो, सोर्स में से जो इनकम जनरेट हो रही है इट इज रेवेन्यू रिसीप्ट। अगर सोर्स ही जा रहा है इट इज अ कैपिटल रिसीप्ट। मैंने आपको कल ये भी बताया था क्या, इफ इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड या इट्स अ कैपिटल एसेट फॉर यू, आपको जज करना पड़ेगा। हेलो, पर्टिकुलर एसेट इज अ स्टॉक इन ट्रेड फॉर यू या इट इज अ कैपिटल एसेट फॉर यू। व्हेन कैन यू से इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड फॉर यू? इफ यू आर डीलिंग इन डे टू डे लाइफ। यू टेल मी, चलो बिल्डर के लिए जो बिल्डिंग है पूरी, वो बिल्डिंग बनाते हैं, 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाते हैं, इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड या इट्स अ कैपिटल एसेट? वो डे टू डे लाइफ में सेल परचेस कर रहा है बिल्डिंग, तो इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड। उसको सेल करने में से जो भी प्रॉफिट आएगा इट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट चार्जेबल टू टैक्स अंडर पीजीबी। क्लियर? या मगर एज अ टीचर अगर मेरे पास बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग मैंने सेल किया, इट इज माय कैपिटल एसेट। तो जो मैं सेल करूंगा जो भी आएगा दैट इज माय कैपिटल रिसीप्ट, इट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी चैप्टर को यही रिलेशनशिप है। इफ इट इज स्टॉक इन ट्रेड, आई एम डीलिंग विद द स्टॉक इन ट्रेड, whatever revenue generated it is taxable under that PGBP, it is my revenue receipt. And if it is not a stock in trade, I am not dealing with that in day to day life, it is my capital asset. And whenever I am selling that capital asset, whatever profit generated, it is chargeable to tax under that capital gain, capital. Be clear. So revenue receipt versus capital receipt. You tell me, चलो मैं general statement deliver करता हूँ। Both receipts are taxable under income tax law. Capital receipt and revenue. कल मैंने पढ़ा है ना, जनरल स्टेटमेंट डिलीवर किया, याद करो वो दिन। हाँ, कल क्या मैंने लास्ट में स्टेटमेंट डिलीवर किया था? ब्रिलियंट स्टेटमेंट मैंने डिलीवर किया था। रेवेन्यू रिसीप्ट कब टैक्सेबल है? रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल एक्सेप्ट इट इज स्पेसिफिकली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अगर वो 30-35 आइटम जो एग्जाम दिया है वहां आता है तो ठीक है, बाकी पूरा समंदर टैक्सेबल है। क्लियर? कैपिटल रिसीप्ट में मैंने क्या पढ़ा? कैपिटल रिसीप्ट्स आर टैक्सेबल ओनली इफ इट इज स्पेसिफिकली टैक्स अंडर इनकम टैक्स लॉ। तो बस वही पोर्शन टैक्सेबल है इफ इट इज स्पेसिफिकली कवर्ड, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स, रेस्ट ऑफ द कैपिटल रिसीप्ट्स आर आउटसाइड द पर्यू ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। क्लियर? आर आउटसाइड द पर्यू ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट बोथ आर टैक्सेबल, बट वाइडर लेवल किसका वाइडर बेस है? रेवेन्यू रिसीप्ट का वाइडर बेस है, कैपिटल रिसीप्ट का लोअर बेस है टैक्सेबिलिटी। एग्जम्पशन वर्सेस डिडक्शन एक टॉपिक ये है, बस खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एग्जम्पशन वर्सेस डिडक्शन। यहां देखो, moment you listen the word exempt, exemption, and moment you listen the word deduction, दोनों एसएससी की फेवरेबल वर्ड्स है, दोनों एसएससी की फेवर में ड्राफ्ट हुआ। हाउ? व्हाई? मुझे कोई भी डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में तो मैं खुश होता हूं या रोने लगता हूं? आप कैसे डिसाइड करते हो? हेलो, हाँ, या अगर आपको कोई बोले कि आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा है तो टैक्स विल गो डाउन, वेरी नाइस। डिडक्शन आपको बोले एग्जाम्ड, आपकी इनकम एग्जाम्ड है, नॉट टैक्सेबल एट ऑल, तो वहां यार जंप करोगे। हाँ, बिंदास समझ लो। मैं आपको बोलूं सबसे बड़ी आज इनकम एग्जाम है सेक्शन 10 की सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम।
आज जहां मेरा 55% पॉपुलेशन डिपेंड करता है, क्या वो इनकम कंप्लीटली टैक्स फ्री है, एग्जाम है, सेक्शन 10(1) कंप्लीटली एग्जाम। आप अगर क्रोर्स में इनकम अर्न करते हो तो भी एग्जाम, कंप्लीटली टैक्स फ्री एग्जाम। एग्जाम मींस फुल्ली टैक्स फ्री, उसमें कुछ सोचने का ही नहीं, डिडक्शन नथिंग, इट कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ माय हेड। 5 में से एक भी हेड में नहीं आएगा, हेड में से ही बाहर निकल गया। आई रिपीट, एग्जाम्ड इनकम कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ माय हेड, एनी ऑफ द हेड। 5 में से कोई भी हेड की इनकम का पार्ट नहीं बन सकता। एंड डिडक्शन मींस 5 हेड में आएगा टोटल, दैट इज टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 80C to 80U क्या है, डिडक्शन, वो डिडक्शन मिलेगा। पहले इनकम ऊपर हेड में आएगा, बाद में आपको डिडक्शन मिलेगा, एंड बाद में नेट बैलेंस है, दैट इज चार्जेबल टू टैक्स। एग्जम्पशन मींस इट्स अ कंप्लीटली आउट, कंप्लीटली टैक्स फ्री। डिडक्शन में जितना वहां सीलिंग सेट किया है अकॉर्डिंगली आपको डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? एग्जम्पशन कैन नेवर बी मोर देन इनकम। एग्जम्पशन कैन नेवर बी मोर देन इनकम। आपका एग्रीकल्चर इनकम 5 करोड़ हुआ, 5 करोड़, तो 5 करोड़ से ज्यादा एग्जम्पशन मिल सकता है? 5 करोड़ ही एग्जाम। डिडक्शन में हो सकता है, डिडक्शन में पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जो दिया है उसका 150% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल, ऐसा काफी सेक्शन है, तो डिडक्शन इज पॉसिबल मोर देन दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर या तो पर्टिकुलर आइटम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या, बट एग्जम्पशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैं फंडामेंटल डिफरेंस बोलूं तो ये माइंड में फिट करके रखना आप। एग्जम्प्ट इनकम कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ माय हेड। 5 में से कोई हेड में नहीं आएगा, तो ग्रॉस टोटल इनकम में नहीं आएगा, टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगा, कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ दैट इनकम, ओनली टैक्सेबल इनकम ही आएगा। क्लियर? या, बट डिडक्शन 5 हेड में आएगा, एंड बाद में आपको जहां भी रिस्पेक्टिव हेड में या तो जहां भी दिया है उसकी जगह है वहां से आपको डिडक्शन मिलेगा। बिग क्लियर? या, दैट इज ऑल अबाउट डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। बिग क्लियर? बोथ आर डिफरेंट थिंग। 5 हेड आपको बताइए, कल मैंने आपको 5 हेड पढ़ाया था, आज अभी आपने रिपीट भी किया। 5 हेड में कौन कौन सी इनकम बेसिक्स टैक्सेबल होने वाली है, दैट ऑल्सो हमने ब्रीफ क्लैरिटी लिया। इनकम टैक्स का रिटर्न, आज तक आपने वर्ड सुना इनकम टैक्स रिटर्न? मींस इनकम टैक्स वापस आता है, रिटर्न आता है। रिटर्न मींस, तो रिटर्न मींस रिटर्न फाइल करना। क्या फाइल, फाइल क्या होता है? इनफैक्ट उसके साथ क्या जाता है, फाफड़ा जलेबी, वो क्या जाता क्या है रिटर्न के साथ? सर जो टैक्स पे करते हैं उस पे हम लोग को क्रेडिट मिलता है, तो वो रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। दैट इज फाइन। माय क्वेश्चन इज रिटर्न क्या है? जो एडवांस में पेमेंट किया हुआ है और दूसरा पेमेंट करना है वो। रिटर्न क्या है? क्या रिटर्न क्या होने वाला है? ये ट्रेन है, वापस रिटर्न होगी, बस है, रिटर्न होगी, टैक्स रिटर्न होगा। वेरी गुड। हाँ, इट इज अ स्टेटमेंट। यहाँ देखो, रिटर्न इज नथिंग बट इट इज अ स्टेटमेंट, एक पेपर है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। 5 हेड का कैलकुलेशन आप करोगे, जो सीट पे कैलकुलेट करोगे, परफेक्ट। ये टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, जो सीट पे ये कैलकुलेट कर रहे हो, दिस सीट इज नोन एज रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। वो आपको फाइल करना, ऑनलाइन जाएगा, सिस्टम में चला जाएगा। क्लियर? रिटर्न मींस वापस नहीं आने वाला, भाई जाने वाला। मीनिंग देयर बाय इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ माय टैक्सेबल इनकम एज वेल एज टैक्स लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ इनकम। सो सिंपल। अभी रिटर्न की सीजन चल रही है, फाइल करते रहे। चलो, वेदर इनकम, आपने कल देखा कि इनकम मींस नेट प्रॉफिट, इनकम इंक्लूड्स नेट लॉस, इनकम इंक्लूड्स नेट प्रॉफिट। आपने कल बोला नेट प्रॉफिट, तो वेदर इट इंक्लूड्स नेट लॉस, तो मैं सेकंड स्टेटमेंट डिलीवर करता हूं, इनकम इंक्लूड्स पॉजिटिव इनकम एज वेल एज नेगेटिव इनकम, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यस का मतलब ये होता क्या, इफ आई अर्न द इनकम, मैंने 50 लाख इनकम अर्न किया तो मैं 30% टैक्स गवर्नमेंट को पे करूंगा, 15 लाख। मैंने 50 लाख लॉस किया तो गवर्नमेंट 15 लाख मुझे देगी। उसका मतलब तो यही हुआ ना। आप बोल रहे हो कि सर पॉजिटिव है तो भी टैक्स वर्कआउट करने का, नेगेटिव है तो भी वर्कआउट करने का, 30%, इसमें हम पे करेंगे, उसमें वो पे करेंगे, दोनों रिश्ता निभाएंगे।
हाँ, जब हमारा टाइम अच्छा था तो हमने टैक्स पे किया, जब हमारा टाइम अच्छा नहीं है तो गवर्नमेंट हमको पे कर रही है। क्या वो तो इंडिया में गली गली निकलू पड़े। क्या बट आपका स्टेटमेंट सही है तो भी सही है। इनकम इंक्लूड्स पॉजिटिव इनकम एज वेल एज नेगेटिव इनकम। गवर्नमेंट आपको रिफंड ही देने वाली है टैक्स लॉस में, आपको बेनिफिट देने वाली है, रिफंड थ्रू नहीं मगर बेनिफिट देने वाली है कंफर्म। देखो टेक अ सिचुएशन, मेरा 2 बिजनेस है, दोनों में 25-25 लाख का प्रॉफिट हुआ, टोटल इज 50 लाख, प्रॉफिट इज 50 लाख। प्रॉफिट हुआ तो टैक्स भरना पड़ेगा। दोनों का टोटल कर दो, मेरा ही अतुल सर का ही दोनों बिजनेस है, टोटल कर दो 50 लाख। 50 लाख पे मैं 30% टैक्स भर देता हूँ, 15 लाख। चलो बाय बाय, आउट। सेकंड ईयर आया, एक बिजनेस में 25 लाख का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 5 लाख का लॉस हुआ। अतुल सर का ही दोनों बिजनेस है, तो अतुल सर का तो अतुल सर इज वन इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल है, बिजनेस 2 है, मगर इनकम टैक्स में तो इंडिविजुअल पर्सन वाइज रिटर्न फाइल करना है, 7% है। तो अतुल सर एक ही इंडिविजुअल है, तो एक इंडिविजुअल का सब कुछ टोटल करना पड़ेगा, टोटल। तो 25 लाख प्रॉफिट, 5 लाख लॉस, सेट ऑफ। कितना बचेगा नेट? 20 लाख। 20 लाख ही टैक्स वाला, 20 लाख पे मुझे 30% टैक्स भरना, 6 लाख कर दो, बाय बाय, खत्म। थर्ड पोजीशन में आए, थर्ड ईयर में आए, दोनों में लॉस हुआ, 10 लाख 10 लाख, 20 लाख लॉस हुआ। टोटल करो कितना लॉस हुआ? 20 लाख। ये 20 लाख लॉस पे गवर्नमेंट टैक्स आपको नहीं देगी, डोंट वरी, मगर 20 लाख लॉस को गवर्नमेंट बोलती है यू कैन कैरी फॉरवर्ड, यू कैन कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होता है उसके सामने सेट अप करना। तो इट इज अ गुड थिंग। फॉर 8 years नॉर्मली आई कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस, मैं लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं 8 साल तक। तो नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट ईयर में आ जाओ, फोर्थ ईयर में दोनों बिजनेस में से 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, वापस हमारा टाइम आया, 50 लाख के सामने मेरा आगे से लॉस कितना रहा? अगर देखो ये लॉस सेट ऑफ नहीं करते, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, तो 50 लाख पे मुझे 30% टैक्स भरना पड़ता। कितना आता? 15 लाख। मगर ये लॉस का सेट ऑफ हो रहा, 50 लाख के सामने 20 लाख सेट ऑफ कर दो, बैलेंस कितना बचा? 30 लाख। 30 लाख पे 30% मींस 9 लाख ही भरना पड़ता, अदरवाइज कितना था? 15 लाख। ये 9 लाख ही भरना पड़ता। कितना डिफरेंस आया? 6 लाख। 6 लाख एग्जैक्ट वही है, 20 लाख जो लॉस आया ना उसका 30% कितना था? 6 लाख। आपका 6 लाख बच गया, तो इट इज एज गुड एज गवर्नमेंट ने आपको दिया टैक्स लॉस में, गवर्नमेंट भागीदार बनी आपकी, यस और नो? या। तो माय क्वेश्चन इज, इनकम इंक्लूड्स पॉजिटिव इनकम एज वेल एज नेगेटिव इनकम। पॉजिटिव इनकम आता है आपके जितने भी बिजनेस है, समझ लो रिलायंस के 50 बिजनेस है, रिलायंस के 50 सेट होता, एक ही कंपनी के अंडर में चल रहा है, 50 का सेट ऑफ होता, नेट जो बचेगा ना उस पर टैक्स भरने, प्रॉफिट आता है तो, नेट लॉस आता है तो कैरी फॉरवर्ड, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years, जब तक प्रॉफिट नहीं होता तब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और जिस साल में प्रॉफिट होगा उस साल में उसके सामने सेट कर लो, एंड बैलेंस प्रॉफिट पे ही आपको उस साल में टैक्स भरना है। आई होप पिक्चर इज सो सिंपल, या ठीक है। एंड ये लास्ट पॉइंट है, वो पर्टिकुलर टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा आपको, एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम, ठीक है। तो आज मैं 28 पॉइंट लेके आया था, ऑल आर completed, yeah, any doubt, any question from the audience?